We now get into the anatomy of the duodenum. Now, before I get into the embryology a little bit, I want you to know that embryologically, whatever is part of the foregut is supplied arterially. The blood supply comes from the celiac trunk. Whatever is part of the midgut, arterial wise, the blood supply comes from the superior mesenteric artery, and whatever is made by the hindgut is supplied by the inferior mesenteric artery. So here you can see in the midgut, or before that, look at the foregut. We have this duodenum coming off right the end of the stomach, and then this is the pancreatic bud, and there's a hepatic bud also here. Can't see it in this image. So basically, everything that is part of the um, foregut is supplied by the celiac trunk. So we're going to look at that in the blood supply when we come to it. Now, something about the duodenum. The duodenum is basically the first part of the small intestine. It's about 25 centimeters long. Its upper part is fixed and the lower part is a little bit mobile, but most of the duodenum is fixed, right? When we come to the jejunum and ileum, it's more mobile, it's convoluted. जैसे इसके बहुत सारे folds होते हैं जो घुसे होते हैं एक थोड़ी से एरिया में, तो इसीलिए duodenum तक ऑलमोस्ट पूरा का पूरा इंटेस्टाइन आके फोल्ड हुआ होता है, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन डुओडेनम के बाद है वो बहुत ज़्यादा फोल्ड्स में कॉन्वल्यूटेड तरीके से पड़ा होता है, बिकॉज सर्फ उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा है कि उस एरिया को मैनेज करना स्टमक की कैविटी में, ये इंटेस्टाइनल कैविटी में सिर्फ तब हो सकता है अगर वो सारा फोल्ड होकर पड़ा हो, ठीक है. सो यू हैव दिस डुओडेनम विच इज़ अबाउट 25 centimeters long. It's fixed. It's the upper part of the small intestine, which is followed by the jejunum and then the ileum. And the ileum empties into the cecum, right? And so basically, जो jejunum और ileum है, that's the lower part of the small intestine. It's mobile and it's very convoluted. The jejunum is 2/5 of the mobile intestine, and the ileum makes 3/5 of the mobile intestine. It's very important for you to exam-wise know the differences between jejunum and ileum. अब हम duodenum में देखते हैं. अब हम jejunum और ileum इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे. Our main point of concern is duodenum for this class. We have the first part, which is, you can see this in blue, this is the superior part, इसको हम first part भी कहते हैं. Then we have the green part. ग्रीन पार्ट जो है हमारा ये सेकेंड पार्ट है, इसको हम डिसेंडिंग पार्ट भी कहते हैं. दिस पिंक पार्ट और द रेडिश पार्ट इज़ द इंफीरियर पार्ट, इसको हम थर्ड पार्ट भी कहते हैं. देन वी हैव द फोर्थ पार्ट विच इज़ ऑल्सो नोन एज द असेंडिंग पार्ट, ठीक है. दिस एंड्स इन द duodenojejunal junction, ठीक हो गया. So we have these are the four parts of the duodenum, ठीक हो गया. We now have the regions of the small intestine. इसको थोड़ा सा हम हिस्टोलॉजिकली माइक्रोस्कोपिकली देख लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये duodenum है, ये सारा पिंक कलर का jejunum है और ये ब्लू कलर का ileum है, ठीक हो गया. तो बेसिकली डुओडेनम जो है ना, इसके अंदर हमारे पास अडेप्टೇಷನ್ಸ್ होती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, और ये अडेप्टೇಷನ್स जो है ना, दे कॉल प्लीका सर्कुलरिस. दीज आर बेसिकली वाल्व्स ऑफ कर्करिंग, ठीक है. ये आपको प्लीका सर्कुलरिस नजर आती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब हमारे पास दीज प्लीका सर्कुलरिस बेसिकली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है. और ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं. दे बिगिन इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द डुओडेनम एंड ग्रेजुअली डिमिनिश इन द जेजुनम एंड इलियम, ठीक हो गया. बेसिकली जेजुनम और इलियम के प्रॉक्सिमल पार्ट तक ये जाते हैं और फिर डिमिनिश होना शुरू हो जाते हैं. प्लीके सर्कुलरिस की बात हो रही है, जो विच आर ऑल्सो नोन एज वॉल्व्स ऑफ कर्कलिंग, ठीक है. ये बेसिकली विलाय देर लाइक, अच्छा उसके ऊपर हमारे पास जो ये प्लीका सर्कुलरिस है ना, इनको अगर हम थोड़ा इनलार्ज करें तो इसके ऊपर हमारे पास विलाय होते हैं, ठीक है. अगर हम विलाय को गौर से देखें तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं म्यूकोज़ा की. तो म्यूकोज़ा की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम विलाय कहते हैं, और ये पूरे के पूरे ल्यूमन को एक वेलवेटी अपीयरेंस देते हैं. दे आर वेरी लार्ज एंड न्यूमरस इन द डुओडेनम एंड जेजुनम, ठीक है. अब हमारे पास जो ये, अच्छा द माइक्रोविलाय जो है ना हमारे पास, कैन यू सी दिस माइक्रोविलाय हेयर. ये जो माइक्रोविलाय हैं, दे फॉर्म अ स्ट्राइएटेड बॉर्डर ऑफ एब्जॉर्प्टेड कॉलमनर सेल्स एंड दे बेसिकली इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव अपटेक, ठीक है. ये हमारे विलाय होते हैं. तो बेसिकली आप इसमें देख रहे हो यहाँ पे ये परमानेंट सर्कुलर फोल्ड्स हैं जो कि किन किन चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं, म्यूकोज़ा को, सब म्यूकोज़ा को, और दे कवर्ड विद द विलाय.
ये क्या करते हैं, सर्फेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, जो काइम पास कर रहा होता है उसकी मूवमेंट को स्लो डाउन करते हैं, दे इन्हांस द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और क्लिनिकल कोरिलेशन इनकी ये है कि दे आर एब्सेंट और फ्लैटेंड इन सीलियाक डिजीज़ एंड सिवियर मैल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। दैट्स समथिंग यू शुड नो। एंड लेट्स मूव ऑन टू द ब्रनर्स ग्लैंड्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्रनर्स ग्लैंड्स हैं। ब्रनर्स ग्लैंड क्या होते हैं, बेसिकली दे प्रोटेक्ट द डुओडेनम फ्रॉम द गैस्ट्रिक एसिड। कंसेप्चुअली ये डुओडेनल डिफेंस में काम करते हैं। दे बेसिकली secrete alkaline mucus जो कि हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट रिच होता है. It neutralizes the acidic chyme from the stomach and protects the duodenal mucosa. It provides optimal pH for the pancreatic enzymes and the brush border enzymes. तो बेसिकली ब्रनर्स ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करते हैं आपके एल्कलाइन म्यूकस, और जब आपके पास ब्रनर्स ग्लैंड की सिक्रीशन कम हो जाती है तो आपको डुओडेनल अल्सर्स मिलते हैं. क्योंकि बेसिकली वो जो एसिड आ रहा है वो इतना एसिडिक है, इतना करोसिव है कि वो अल्सर कॉज कर रहा है, ठीक है. कभी कभी ब्रनर्स ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया हो जाता है और वो बिनाइन नोड्यूल्स फॉर्म करता है, और डुओडेनल ऑब्स्ट्रक्शन भी फॉर्म कर सकता है इसका हाइपरप्लेजिया ब्रनर्स ग्लैंड का, लेकिन ये बहुत रेयर है, ठीक है. रिमेंबर दैट इट्स कॉम्पनसेटरी इन हाई गैस्ट्रिक एसिड स्टेट्स. इसका क्या मतलब है कि जब आपके पास हाई गैस्ट्रिक एसिड होती है, बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है स्टमक से, तो फिर ये कॉम्पनसेटरी काम करती है, ये एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस करती है, ठीक हो गया. उसके बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकन होते हैं, ठीक है. क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकन बेसिकली आपकी ये जो दो विलाए होते हैं ना उसके बीच में जो ये डाउन पाउचिंग है ना आपकी, इसको हम क्रिप्ट्स कहते हैं. अब क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकन क्या होते हैं, दे बेसिकली सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स, दे प्रेजेंट थ्रू आउट द जेजुनम एंड इलियन, और दे ओपन बिटवीन द विलाए. दे सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक म्यूकस, ठीक है. और हमारे पास ना इन क्रिप्ट्स के अंदर सेल टर्नओवर होता है, तो दीज सेल्स माइग्रेट टूवर्ड्स द विलस टिप्स, ठीक है. और दे शेड फ्रॉम द, अब जो ये सेल्स होते हैं ना क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकन में, ये बेसिकली सेल्स को रिजुविनेट कराते हैं, ठीक है. जो सेल्स विलाई के टिप्स से शेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, गिर जाते हैं, उनको ये रीजनरेट कराते हैं. इंटायर एपिथेलियम इज़ रिप्लेस्ड एवरी 2 to 4 days, ठीक है. अब कौन कौन से सेल्स होते हैं आपके पास क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकन में, आपके पास स्टेम सेल्स होते हैं जो कि कंटिन्यूस एपिथेलियल रिन्यूअल कराते हैं. एंटेरोसाइट्स होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन कराते हैं. आपके पास गॉबलेट सेल्स होते हैं, ये म्यूकस रिलीज़ करते हैं. फिर पैनिथ सेल्स होते हैं. पैनिथ सेल्स जो है वो बेस वाले सेल्स होते हैं, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट वाले सेल्स होते हैं, ये एंटी माइक्रोबियल डिफेंस कराते हैं. और फिर आपके पास एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन सिक्रीशन कराते हैं, ठीक हो गया. अब आपके पास यहाँ पे यू कैन सी द लामिना प्रोप्रिया, डेंड्रिटिक सेल्स, मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स एंड द पायर पैचेस. ओके, पायर पैचेस बेसिकली क्या होते हैं, the Peyer's patches are basically aggregated lymphatic follicles, ठीक हो गया. आपके पास solitary lymphatic follicles होते हैं which are basically 1 to 2 millimeter in the diameter, and this is throughout the small and large intestine. Now the ones that get aggregated, the lymphoid follicles that get aggregated are then called the Peyer's patches. The Peyer's patches are basically circular or oval patches. They are basically 2 to 10 centimeters in length, and they contain the Peyer's patches itself contains 10 to 200 follicles, the lymphoid follicles. They're most numerous in ileum, and they can ask you this question on an MCQ that they're most numerous in ileum. They're located along the anti-mesenteric border. आप बाद में देखोगे कि mesentery जो है ना वो एक जगह से attached होती है और एक जगह से हैंगिंग होती है. जिस जगह से हैंगिंग होती है उसको हम एंटी mesenteric border कहते हैं, ठीक है. Now the Peyer's patches extend from the lamina propria. Lamina propria से शुरू होते हैं and they extend up to the submucosa. So you can see ये लामिना प्रोप्रिया से लेके ऑल द वे अप टू द सबम्यूकोजा एक्सटेंड हो रहे हैं. ये एक पायर पैच है, ठीक है. एंड दे आर ओवरलेन बाय एम सेल्स. एम सेल्स भी हमने पढ़े थे इंटेस्टाइन में, और दे आर पार्ट ऑफ द GALT विच इज़ बेसिकली गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है. फंक्शन क्या होता है इन पायर पैचेस के, ये सैम्पल करते हैं ल्यूमिनल एंटीजेंस को और उसकी वजह से पैथोजन इन्वेजन प्रिवेंट करते हैं. Typhoid fever में these Peyer's patches in typhoid fever become the main sites of inflammation, in which case they may develop into ulcerations, hemorrhages और perforations. तो typhoid fever जो है वो Peyer's patches को टारगेट करता है, वहाँ पे inflammation और necrosis कराता है, वहाँ पे ulcers होते हैं और possible perforation भी हो सकती है terminal ileum में. अब हम आ जाते हैं मेन पॉइंट्स ऑफ डुओडेनम के. डुओडेनम के मेन पॉइंट्स में अगर हम आएँ तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि duodenum is derived from the Greek word
ड्यू डिकैडेक्टुलोस, ठीक है, बहुत फनी सा वर्ड है. इट बेसिकली मीन्स 12 फिंगर्स लॉन्ग बिकॉज द डुओडेनम इज़ 12 फिंगर्स लॉन्ग अपेरेंटली. ठीक हो गया. अब हम देखेंगे कि इसके 4 पार्ट्स हैं. हमने पहले भी देखे थे कि जो डुओडेनम है इट्स द शॉर्टेस्ट वाइडेस्ट मोस्ट फिक्स पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, यहाँ स्टमक का पाइलोरस जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से ये एक्सटेंड करता है अप अंटिल टू द डुओडेनोजेजुनल फ्लेक्सर, क्योंकि इसके बाद जेजुनम शुरू हो जाता है. तो आपका ये सी शेप्ड लूप है विच लूप्स अराउंड द हेड ऑफ द पैनक्रियास. इसके अंदर क्या पड़ा होता है, इस जगह पे पैनक्रियास का सर हेड पड़ा होता है, राइट. इट लाइज एट द लेवल ऑफ इट लाइज अबव द लेवल ऑफ अम्बिलिकस एंड इट लाइज ऑपोजिट L1 to L3 वर्टिब्रा. तो आप हमेशा याद रखो कि कौन सी चीज़ें किस लेवल पे पड़ी होती हैं. तो डुओडेनम जो है वो L1 to L3 लेवल ऑफ वर्टिब्रा पे पड़ा होता है. यहाँ पे आप एक कैडेवर पे देख सकते हो कि दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम. देन यू हैव ये बेसिकली ये पैनक्रियास है कैडेवर का, ठीक है. ये पैनक्रियास का हेड है और ये सी शेप डुओडेनम उसके इर्द गिर्द अराउंड घूम रहा है. ठीक हो गया. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टमक ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे स्टमक ख़त्म हो रहा है वहाँ से डुओडेनम शुरू हो रहा है. ठीक है, दैट इज़ समथिंग वी कैन ऑल्सो अप्रिशिएट हियर. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डुओडेनम के ना 4 पार्ट्स हैं, राइट. तो जो D1 है ना, जो पहला पार्ट है ये 5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होता है. जो दूसरा पार्ट है डिसेंडिंग पार्ट, ये सुपीरियर पार्ट है D1. और फिर ये सुपीरियर डुओडेनल फ्लेक्चर से लेकिन इंफीरियर डुओडेनल फ्लेक्चर तक है आपका D2 विच इज़ द सेकंड डिसेंडिंग पार्ट एंड दिस इज़ अबाउट 7.5 centimeters long. And then we have the third part which is horizontal and this extends from this inferior duodenal flexure to this point after which it ascends, right. So this third part is basically 10 centimeters long और ये जो fourth part है जो ascend करता है duodenojejunal flexure तक, this is basically 2.5 centimeters long. तो ये overall यहाँ पे आप देख लें, you can pause this and memorize these lengths. First part, second part, third part, fourth part, and lying at opposite the L1, L2, L3 vertebra. ठीक हो गया. Now it's important to see which parts are covering the duodenum. The surface is covered by peritoneum. This green surface is वो surfaces हैं जो peritoneum से covered है. तो it's partially covered by peritoneum और ये intraperitoneal वो है जो कि पूरा का पूरा पार्ट जो है वो पेरिटोनियम के अंदर है. तो ये बिल्कुल जो आपके ऑरिफिसेस है ना, जहाँ से ये शुरू हो रहा है, जहाँ पे पाइलोरिक एरिया पाइलोरस इंटर हो रहा है डुओडेनम में, वो वाला एरिया और बिल्कुल एंड वाला एरिया जहाँ पे जेजुनम में एंटर कर रहा है डुओडेनम का बोलस ऑफ फूड, वो आपका इंट्रापेरिटोनियल है. और ये ग्रीन पार्ट जो है थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट का एंड और सेकंड पार्ट का शुरू, एंड ऑल ऑफ दिस इंफीरियर पार्ट ऑफ द थर्ड पार्ट इज़ बेसिकली कवर्ड बाय द पेरिटोनियम. ठीक हो गया. अब हम आगे चलते हैं. सो बेसिकली द फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम. अगर हम फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम की बात करें तो ये पाइलोरस पे शुरू होता है एंड इट पासेस बैकवर्ड्स अपवर्ड्स एंड राइट एंड एंड्स एट द सुपीरियर डुओडेनल फ्लेक्चर. ठीक हो गया. अब हम इसमें देखेंगे कि फ़र्स्ट पार्ट के कुछ पेरिटोनियल रिलेशंस होते हैं. उसके लिए हम इस इमेज को देख लेते हैं. जो द फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम है ना, दिस इज़ बेसिकली अटैच टू द लेसर ओमेंटम अबव एंड यू कैन सी कि ये ऊपर से लेसर ओमेंटम से अटैच्ड है. ये येलो कलर का लेसर ओमेंटम है एंड फ्रॉम बिलो इट्स अटैच टू द ग्रेटर ओमेंटम. दिस पार्ट इज़ बेसिकली फिक्स्ड, इट्स रेट्रोपेरिटोनियल एंड इट्स कवर्ड बाय पेरिटोनियम एंटीरियरली ओनली. रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ आगे से पेरिटोनियम से कवर्ड है. ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट का पेरिटोनियल रिलेशन हो गया. ठीक हो गया. आगे चलते हैं. अब फर्स्ट पार्ट के हम विस्ट्रल रिलेशंस देख लेते हैं. ठीक हो गया. एंटीरियरली हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, अगर हम फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम को देखें तो ये उसने काट के आपको पिक्चर दिखाई हुई है कि अगर हम साइटल सेक्शन ले, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम है, इसके ऊपर एंटीरियरली आगे की साइड पे क्या पड़ा हुआ है, क्वाड्रेट लोब ऑफ लिवर पड़ा हुआ है और गॉल ब्लैडर पड़ा हुआ है, राइट. तो ऊपर से डुओडेनम के फर्स्ट पार्ट के आगे एंटीरियरली क्या पड़ा हुआ है, दो चीज़ें, क्वाड्रेट लोब ऑफ लिवर एंड गॉल ब्लैडर. पोस्टीरियरली आपके पास क्या पड़ा हुआ है, अगर मैं पोस्टीरियर रिलेशन देखूँ, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम है और ये इसके पोस्टीरियर रिलेशन हैं. पोस्टीरियरली आपके पास एक तो गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, बाइल डक्ट है. ये हमारे पास बाइल डक्ट पड़ा है, ठीक है, और ये गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी है, सिलियाक ट्रंक से निकल रही है गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी, ठीक है, और ये हमारे पास बाइल डक्ट पड़ी हुई है और हमारे पास पोर्टल वेन है. ये ब्लू कलर की आपको पोर्टल वेन नज़र आ रही है. ठीक हो गया. अब हम देखते हैं कि हमारे पास सुपीरियरली क्या पड़ा हुआ है. सुपीरियरली अगर हम देखें तो हमारे पास एपीप्लोइक फोरामेन है. ये फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम है और उसके ऊपर एपीप्लोइक फोरामेन पड़ा हुआ है. एपीप्लोइक फोरामेन बेसिकली होता क्या है, इसको हम थोड़ा सा गौर से देख लेते हैं. ये आपको यहाँ पे एपीप्लोइक फोरामेन नज़र आ रहा है, ये एपीप्लोइक फोरामेन है.
It's basically epiploic foramen करता क्या है? It's also known as the foramen of Winslow. It communicates the lesser peritoneal sac with the greater peritoneal sac. ठीक है, तो यहाँ पे आपका lesser peritoneal sac है और यहाँ पे greater है, तो it basically communicates with those two sacs. ठीक है, it has a free right border that forms the anterior boundary of the epiploic foramen. ठीक है, वो जो आपका lesser omentum है ना, this lesser omentum, it has a free right border. This is the free right border that forms the anterior boundary of the epiploic foramen. The chordate process of the liver projects to the right lobe. ये जो chordate process of liver है, ये liver है आपका, इसका जो chordate process है, this projects to the right lobe. It forms the posterior lip of the porta hepatis and the अपर बाउंड्री ऑफ द एपिप्लॉइक फोरामन. तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि इट फॉर्म द जो कॉर्डेट लिवर का जो लिवर का कॉर्डेट प्रोसेस है, ये प्रोजेक्ट करता है और ये पोस्टीरियर लिप बनाता है आपका एपिप्लॉइक फोरामन का. ये अपर बाउंड्री बना रहा है ना, और पोस्टीरियर लिप बनाता है आपके पोर्टा हेपाटिस का. ये आपका पोर्टा हेपाटिस आपको नज़र आ रहा है. ठीक है, द इन्फीरियर वीना कावा लाइज ऑन द बैक ऑफ द कॉर्डेट प्रोसेस एंड द IVC, द इन्फीरियर वीना कावा फॉर्म्स द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द एपिप्लॉइक फोरामन. यहाँ पे हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे पीछे पोस्टीरियरली आपके पास इन्फीरियर वीना कावा पड़ी हुई है और पोस्टीरियर बाउंड्री बना रही है इस फोरामन की. फिर आपके पास इन्फीरियर बाउंड्री भी है. जो इन्फीरियर बाउंड्री है वो द inferior boundary of the epiploic foramen is the first part of the duodenum passing inside the free border of the lesser omentum. ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसकी सर्जिकल इंपॉर्टेंस देखें तो कॉलीसिस्टेक्टमी में जब आपने गॉल ब्लैडर रिमूव करना होता है, कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द सिस्टिक आर्टरीज अचीव्ड बाय प्रिंगल्स मनूवर. प्रिंगल्स मनूवर करते हैं, वो क्या करते हैं कि आप अपनी इंडेक्स फिंगर को डालते हैं इस एपिप्लॉइक फोरामेन में और विद द थंब यू प्रेस द फ्री बॉर्डर ऑफ द लेसर ओमेंटम टू प्रोड्यूस डायरेक्ट प्रेशर ऑन द हेपैटिक आर्टरी. जब हम इसको दबाते हैं थंब से प्रिंगल मनूवर्स की तरह के लिए, तो हम हेपैटिक आर्टरी पे प्रेशर करते हैं. दिस इज द साइट ऑफ एक्सपोजर ऑफ द सुप्रा duodenal portion of the common bile duct to remove bile stones also. So the Winslow foramen is a defect for the internal hernia. ये भी याद रखें आप. ठीक है, ये हमने थोड़ा सा ये देख लिया. अब हमने क्या कहा था कि आपके पास ये कहाँ पे पड़ा हुआ था, सुपीरियरली आपके पास एपिप्लॉइक फोरामेन था. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम के सुपीरियरली आपके पास एपिप्लॉइक फोरामेन था और ऊपर में बताया था ना कि कॉर्डेट प्रोसेस ऑफ लिवर इसकी बाउंड्री बना रहा था. ठीक हो गया. अब एक और चीज़ जो है, इन्फीरियरली क्या पड़ा हुआ है, इन्फीरियरली फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम के इन्फीरियरली आपके पास हेड एंड नेक ऑफ पैंक्रियास पड़ा है. क्योंकि ये देखो, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम है, इसके बिल्कुल इन्फीरियरली हेड ऑफ पैंक्रियास पड़ा है. ठीक है, ये समझ आ गई यहाँ तक बात. अब हम आगे चलते हैं सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम पे. ठीक हो गया. सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम जो है वो फर्स्ट ये सुपीरियर डुओडेनल सुपीरियर डुओडेनल फ्लेक्चर से लेके इन्फीरियर डुओडेनल फ्लेक्चर का पार्ट है. ये 7.5 सेंटीमीटर है. ठीक है, और ये L3 वर्टिब्रा के ऑपोजिट पड़ा होता है. ठीक है, और ये अगर हम इस पिक्चर पे वापस जाएं तो ये रेट्रोपेरिटोनियल है आपका. जो सेकंड पार्ट है ये रेट्रोपेरिटोनियल है और फिक्स्ड है, और एंटीरियर सरफेस पेरिटोनियल है एक्सेप्ट नियर द मिडिल वाले पार्ट पे नहीं है कुछ भी. ठीक हो गया. अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि सेकंड पार्ट के विसरल रिलेशंस क्या हैं. ठीक है, अगर हम एंटीरियरली देखें तो ये जो सेकंड पार्ट ऑफ, ये आपको इसने सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम दिखाया हुआ है. ठीक है, इसके एंटीरियरली आपके पास क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, गॉल ब्लैडर पड़ा हुआ है, और क्या पड़ा हुआ है, राइट लोब ऑफ लिवर पड़ा हुआ है, ट्रांसवर्स कोलॉन पड़ा हुआ है और ट्रांसवर्स मीसोकोलॉन पड़ा हुआ है. ठीक हो गया. अगर आप इसको और गौर से देखें तो हम ट्रांसवर्स मीसोकोलॉन की जगह रूट ऑफ ट्रांसवर्स मीसोकोलॉन बोलते हैं. थोड़े से आपके पास कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन भी पड़े हुए हैं. तो ये सारी चीज़ें इसके एंटीरियरली पड़ी हुई हैं. साइड से सजाइटल सेक्शन आपको दिखाया हुआ है. तो सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम के आगे गॉल ब्लैडर, राइट लोब ऑफ लिवर, ट्रांसवर्स कोलॉन, ट्रांसवर्स मीसोकोलॉन और कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पड़े हुए हैं. अगर पोस्टीरियर रिलेशंस देखें आप सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम के, तो पोस्टीरियरली आपके पास राइट किडनी पड़ी है, राइट रीनल, ये देखो ना, ये सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम है. तो पोस्टीरियरली राइट किडनी है, राइट रीनल वेसल्स हैं, राइट एज ऑफ इन्फीरियर वीना कावा है और राइट सोआस मेजर है. ठीक हो गया. अगर हम इसके मीडियल और लैटरल रिलेशंस देखें, तो अगर हम सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम के विसरल रिलेशंस में मीडियल रिलेशंस देखें, तो मीडियल रिलेशंस में आपको, ये सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम है ना, तो मीडियली आपको यहाँ पे हेड ऑफ पैनक्रियास मिलेगा और ये बाइल डक्ट मिलेगी. तो बाइल डक्ट और हेड ऑफ पैनक्रियास आपके मीडियल रिलेशंस में आ जाएगा. और अगर मैं लैटरली देखूँ तो लैटरली मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, ये राइट कॉलिक फ्लेक्चर पड़ा हुआ है. ये समझ आ गई ना बात. ये आपके सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम के पार्ट्स हो गए. अब एक और चीज़ है, इंटीरियर ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम का इंटीरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट ड्रेन हो रही है. एक माइनर डुओडेनल पेपिला है और एक मेजर डुओडेनल पेपिला है आपका. ये ओपनिंग ऑफ मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है. इसको हम क्या बोलते हैं, मेजर डुओडेनल पेपिला को हम एम्पुला ऑफ वाटर भी बोलते हैं. ठीक है,
ये एम्पल ऑफ वाटर, कोई भी गैलस्टोन अगर एम्पुला पे पड़ा हुआ है तो फिर वो बाइल को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, पैनक्रिएटिक डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, पीछे जॉन्डिस कॉज होगा, ठीक है, क्योंकि बाइल नहीं आ पा रहा, बाइल पीछे बिल्डअप होगा, और पैनक्रिटाइटिस भी कॉज करेगा। ये जो आपका ओपनिंग है ना एम्पल ऑफ वाटर की, यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, उसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई डिसफंक्शन जो है जब भी होगा तो आपको वही जॉन्डिस, बिलियरी कॉलिक पेन और पैनक्रिटाइटिस के पैटर्न्स मिलेंगे, ठीक हो गया। तो बेसिकली दो एलिवेशंस पड़ी होती हैं अलॉन्ग दिस पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट। ये अंदर आप देखें तो ये अगर इंटीरियर देखूँ तो मैं पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट बोलूँगी ना इसको, तो ये मेजर डुओडेनल पैपिला है आपका, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको मेजर डुओडेनल पैपिला। ये कॉनिकल एलिवेशन है जो 8 to 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाइलोरिक एंड ऑफ द स्टमक। यहाँ आप स्टमक से दूर कितना हो गए, 8 to 10 सेंटीमीटर्स। एम्पुला ऑफ वाटर इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ द बाइल डक्ट एंड द मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। ये बाइल डक्ट और मेन पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलकर एम्पुला ऑफ वाटर में खुलते हैं। द ओपनिंग इज गार्डेड बाय द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। और फिर जो माइनर डुओडेनल पैपिला, इट्स अ स्मॉल कॉनिकल एलिवेशन अबाउट 2 सेंटीमीटर्स अबव द मेजर डुओडेनल पैपिला एंड एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स ऑन इट समिट। तो जो एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट है वो इसकी समिट पे खुलती है अंदर, ठीक हो गया। ये आपका सेकेंड पार्ट का इंटीरियर एरिया था। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट ऑफ डुओडेनम में। जब हम थर्ड पार्ट ऑफ डुओडेनम की बात करते हैं तो द थर्ड पार्ट ऑफ डुओडेनम ये वाला पार्ट है जो इन्फीरियर डुओडेनल फ्लेक्चर से आगे यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। इट्स बेसिकली इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर्स है। इट बिगिंस एट इन्फीरियर डुओडेनल फ्लेक्चर, यहाँ पे स्टार्ट करता है, पासिस फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ द इन्फीरियर वीना कावा। ये आप देख रही हैं इन्फीरियर वीना कावा के सामने से गुजर रहा है, ठीक है। और क्या चीज़ है इसकी, इट एंड्स इन फ्रंट ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा। ये आगे एब्डोमिनल एओर्टा है, यहाँ पे ये रुक जाता है। तो आप याद रखें कि आगे ये जो ब्लू और ग्रीन रेड आपको नज़र आ रहा है, ब्लू वाली आपकी इन्फीरियर वीना कावा है और रेड वाली एब्डोमिनल एओर्टा है जहाँ पे थर्ड पार्ट ख़त्म हो जाता है, ठीक हो गया। क्लिनिकली इसमें हम देखेंगे कि एक हमारे पास सिंड्रोम होता है, वो पिक्चर अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये सुपीरियर मीसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम होता है। ये जो अंदर थर्ड पार्ट ऑफ डुओडेनम है ना, ये कंप्रेस हो सकता है बिटवीन द एओर्टा और एओर्टा से जो सुपीरियर मीसेंटेरिक आर्टरी आ रही है, ठीक है। अब अगर आप एकदम से एनोरेक्सिया नर्वोसा में वेट लॉस करें, या आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत टेंशन चल रही है और आपने एकदम से बहुत ज़्यादा वज़न लूज़ किया, या बहुत ज़्यादा दफ़ा ये होता है कि जिन लड़कियों की शादियाँ होने वाली होती हैं, फॉर सम वियर्ड रीज़न दे लूज़ अ लॉट ऑफ वेट वेरी क्विकली, तो आपका जो फैट पैड होता है ना, अगर बहुत ड्रास्टिकली क्विक चेंज आए, इसमें लॉस आए, तो दिस इज़ अ फैट पैड अराउंड दिस थर्ड पार्ट ऑफ डुओडेनम दैट प्रोटेक्ट्स दिस एंगल। दिस एंगल इज़ नॉर्मली, दिस एओर्टोमीसेंटेरिक एंगल इज़ नॉर्मली 38 to 65 डिग्रीज़। लेकिन जब आपका वेट लॉस होता है ना तो इसकी कंप्रेशन हो जाती है। कंप्रेशन क्यों होती है, क्योंकि एंगल ड्रॉप करता है, लेस देन 25 डिग्रीज़ हो जाता है। तो नॉर्मली जो एंगल 38 to 65 डिग्रीज़ है वो अब 25 डिग्री हो गया, तो ये एंगल कम हो जाता है, ये दोनों आपकी करीब आ जाती हैं और डुओडेनम बीच में कंप्रेस होती है। इसको हम बोलते हैं सुपीरियर मीसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट पे वापस चलते हैं। हम थर्ड पार्ट की बात कर रहे थे, अब हम इसके रिलेशंस देखते हैं। थर्ड पार्ट के रिलेशंस अगर हम देखें तो एंटीरियरली हमारे पास ये आपका थर्ड पार्ट ऑफ डुओडेनम आगे दिखाया हुआ उसने, ठीक है, जो कि एंड कहाँ पे करा था, एब्डोमिनल एओर्टा में। और हमने कहा क्या कहा था, इन्फीरियर वीना कावा। यहाँ पे आपको एब्डोमिनल एओर्टा और इन्फीरियर वीना कावा नज़र आ रही है, ठीक है। ज़्यादा अच्छी तरह मैं अगर एंटीरियर रिलेशंस दिखाऊँ तो ये वाली पिक्चर में देखनी चाहिए हमें, ये देखो, ठीक है। ये इसने पीछे से दिखाई हुई है क्योंकि यहाँ पे लेफ़्ट किडनी नज़र आ रही है, लेफ़्ट रीनल वेन नज़र आ रही है, ठीक हो गया। ये वाली पिक्चर देखते हैं, ये ज़्यादा अच्छी है। तो ये आपका थर्ड पार्ट ऑफ डुओडेनम है और इसके आगे क्या आपकी पोर्टल वेन पड़ी हुई है, ठीक है। अब उन्होंने क्या क्या चीज़ें दिखाई हैं एंटीरियर रिलेशंस में, सुपीरियर मीसेंटेरिक वेसल्स, ये देखो ये सुपीरियर मीसेंटेरिक वेसल्स बन गई हैं आपकी, ठीक है। और ये ऊपर पोर्टल वेन बन गई क्योंकि ये इन्फीरियर वीना कावा थी ना। अब हम देखते हैं रूट ऑफ मीसेंटरी, ये रूट ऑफ मीसेंटरी है यहाँ पे, और ये कॉइल्स ऑफ जेजिनम है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपकी आगे वाले पार्ट्स में आ जाती हैं, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट के पोस्टीरियर रिलेशंस में। पोस्टीरियर रिलेशंस में देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये थर्ड पार्ट ऑफ डुओडेनम है, इसके पोस्टीरियरली आपके पास राइट यूरेटर मिलेगा आपको, ये राइट यूरेटर पड़ा हुआ है। फिर आपको राइट सोएस मेजर भी मिलेगा, ये वाला मसल भी पड़ा हुआ है, ये रहा राइट सोएस मेजर। गोनाडल वेसल्स मिलेंगी, ये राइट गोनाडल वेसल्स पड़ी हुई हैं। इन्फीरियर वीना कावा मिलेगी, ये इन्फीरियर वीना कावा है। मैंने कहा था ना कि पोस्टीरियरली आपको इन्फीरियर वीना कावा मिलेगी, तो ये यहाँ पे इस तरह पोस्टीरियर दिखाया हुआ है, इन्फीरियर वीना कावा और एब्डोमिनल एओर्टा। देखो ये पोस्टीरियरली दिखाया हुआ है, यहाँ पे भी आपको राइट यूरेटर, राइट सोएस मेजर दिखाया हुआ है। ये पोस्टीरियर रिलेशंस के लिए पिक्चर अच्छी है। और सुपीरियरली आपको क्या मिलेगा, हेड ऑफ पैनक्रियस, ठीक है। यहाँ पे नहीं उसने शो किया हुआ, लेकिन यहाँ पे शो किया हुआ है। ये
आई डोंट नो कि ये हेड ऑफ पैनक्रियास दिखाया हुआ है, हेड ऑफ पैनक्रियास यहाँ होना चाहिए टेक्निकली, बट आपको सुपीरियरली हेड ऑफ पैनक्रियास मिलता है और इन्फीरियरली कॉइल्स ऑफ जेजुनम मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कॉइल्स ऑफ जेजुनम, नहीं दिखाए हुए, यहाँ पे दिखाए हुए थे कॉइल्स ऑफ जेजुनम। तो ये देखो, ये एंटीरियरली तो तुम्हें सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स और रूट ऑफ मेसेंट्री मिल गई, लेकिन इन्फीरियरली याद रखना एंटीरियर ही आगे ही है लेकिन इन्फीरियरली है, तो ये इन्फीरियर रिलेशंस में इसने डाला हुआ है कॉइल्स ऑफ जेजुनम को। ठीक है, आई होप इसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं था। अगर याद करना है तो पोस्टीरियर रिलेशन में एब्डोमिनल एओर्टा और इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी भी याद कर सकते हो। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। एक और पिक्चर थी जिसमें हेड ऑफ पैनक्रियास, हाँ ये देखो हेड ऑफ पैनक्रियास है और कॉइल्स ऑफ जेजुनम है। ये आपके डेडोनम के सबसे आखिर में आप देख सकते हो कि ये आखिरी पार्ट था ना, तो आखिरी पार्ट के ऊपर सुपीरियरली पैनक्रियास था और इन्फीरियरली कॉइल्स ऑफ जेजुनम का रिलेशन था। ये पिक्चर अच्छी दिखा रही थी चीज़ें हमें। ठीक है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सिंड्रोम भी हमने देख लिया। अब हम चलते हैं आखिरी पार्ट पे, विच इज़ द फोर्थ पार्ट। आई होप यू गाइस आर नॉट डेड येट। तो ये फोर्थ पार्ट ऑफ डुओडेनम है। इसकी जो लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर है एंड इट असेंड्स टू लेफ्ट ऑफ द एओर्टा। सो दिस इज द एओर्टा एंड इट इज असेंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ इट। ठीक हो गया। एंड इट एंड्स एट द duodenojejunal फ्लेक्चर। ठीक हो गया। You can pause and look at the other parts of this picture also for your own comfort, but I'm going to move on to the relations quickly क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। फोर्थ पार्ट में एंटीरियर रिलेशंस में आपके पास ट्रांसवर्स कोलॉन है, ये नज़र आ रहा है, और ट्रांसवर्स मीसर कोलॉन है। ठीक हो गया। पोस्टीरियर रिलेशंस देखें अगर डुओडेनम के, तो उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें नज़र आती हैं। लेफ्ट सिंपैथेटिक ट्रंक नज़र आती है। ठीक है, लेफ़्ट रीनल आर्टरी नज़र आ रही है आपको यहाँ पे, लेफ़्ट गोनाडल आर्टरी यहाँ पे नज़र आ रही है आपको, फिर इन्फीरियर मीसेंटेरिक वेन नज़र आ रही है। लेट्स लुक एट द इन्फीरियर मीसेंटेरिक वेन, ये रही। ठीक है, तो और अगर आप और देखें आगे चलें तो आपको लेफ़्ट एरिया पे क्या नज़र आ रहा है, ये सब आखिरी पार्ट है ना डुओडेनम का, तो इस पे लेफ़्ट पे आपको लेफ़्ट किडनी मिलेगी, ये रही लेफ़्ट किडनी। ठीक है, इसके लेफ़्ट पे लेफ़्ट किडनी मिलेगी, लेफ़्ट यूरेटर मिलेगा, ये रहा लेफ़्ट यूरेटर। ठीक हो गया। राइट पे रूट ऑफ मीसेंटरी मिलेगी और सुपीरियरली बॉडी ऑफ पैनक्रियास मिलेगा। ये देखो, ये थर्ड पार्ट ऑफ डुओडेनम है, तो सुपीरियरली पैनक्रियास की बॉडी पड़ी हुई है। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। और ये देखो फोर्थ पार्ट के रिलेशन में नज़र आ रहा है कि राइट पे रूट ऑफ मीसेंटरी, यहाँ पे मैं नहीं दिखा पाई, यहाँ पे नज़र आ रही है, ये रूट ऑफ मीसेंटरी, ये नज़र आ रही है ग्रीन कलर की, ये रूट ऑफ मीसेंट्री है जो कहाँ पे अटैच्ड है, आखिरी पार्ट ऑफ डुओडेनम पे अटैच्ड है। ठीक है, डुओडेनोजेजुनल जंक्शन पे, और ये जाके ऑल द वे एक्सटेंड करती है। ठीक हो गया। ये स्वास मेजर मसल नीचे से नज़र आ रहा है और सुपीरियरली ये बॉडी ऑफ पैनक्रियास पड़ी हुई है, राइट। और लेफ़्ट पे अगेन मैंने दिखाया था कि ये लेफ़्ट किडनी है और लेफ़्ट यूरेटर है। ठीक हो गया। अब हम रेडियोलॉजी की एक इमेज देख लेते हैं। अगर हम ये इमेज देखें तो फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम फॉर्म्स द डुओडेनल कैप ऑन बेरियम स्टडी। ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम है ना, ये डुओडेनल कैप फॉर्म करता है। ठीक है, इट्स द कॉमनेस्ट साइट ऑफ पेप्टिक अल्सर विद पेन रिलीव्ड बाय मील्स, has close relations to liver and gallbladder and may be obstructed congenitally or by annular pancreas और SMA compression। annular pancreas क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजिकली जब pancreas डेवलप हो रहा होता है तो वो दो बर्ड्स से डेवलप होता है, वो दोनों घूम के फ्यूज़ होते हैं। घूमते हुए रोटेशन के दौरान अगर एक टिश्यू पार्ट रह जाए डुओडेनम के इर्द गिर्द पैनक्रियास का, तो ये एनुलर पैनक्रियास बन जाता है और वो उसे यहाँ पे कंप्रेस करता है। या फिर सुपीरियर मीसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम में अगर ये कंप्रेशन हो तो आपका जो ये डुओडेनल कैप है ना, ये आपको नज़र आता है क्योंकि आपका डुओडेनम इज़ कंजेनिटली और ड्यू टू सम डिजीज़ और ऑब्स्ट्रक्टेड। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम आपका ये डुओडेनल कैप पे नज़र आता है एक्सरे की तरह। फिर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लिगामेंट है, इसको हम कहते हैं लिगामेंट ऑफ ट्राइड्स। ठीक है, दिस इज बेसिकली दिस लिगामेंट ऑफ ट्राइड्स इज फिब्रोमस्कुलर बैंड, इट सस्पेंड्स द डुओडेनोजेजुनल फ्लेक्चर। तो आप देख सकते हो समहाउ उसने ये फ्लेक्चर को सस्पेंड किया हुआ है, खींच के रखा हुआ है। इसकी कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेज द एंगल ऑफ डुओडेनोजेजुनल फ्लेक्चर। इस लिंग ने इसको खींच के रखा हुआ है ना, जैसे एक पुली सा मैकेनिज्म बना हुआ है यहाँ पे। इट अराइजेज फ्रॉम द राइट क्रस ऑफ द डायफ्राम। ये डायफ्राम का राइट क्रस है, मैं बताया था ना डायफ्राम दो क्रसेस से बनता है, राइट क्रस होता है, लेफ्ट क्रस होता है। ठीक है, एंड देन इट इंसर्ट्स इनटू द डुओडेनोजेजुनल फ्लेक्चर। इसके कंपोनेंट्स क्या है, स्ट्राइटेड मसल होते हैं अपर पार्ट में, बीच वाले पार्ट में इलास्टिक फाइबर्स होते हैं और स्मूथ मसल जो है वो लोअर फाइबर में होता है। एक चीज़ ये है कि लिगामेंट ऑफ ट्राइड्स जो है ना, इट एक्ट्स एज अ लैंडमार्क डिवाइडिंग द अपर वर्सेस द लोअर जीआई ब्लीड। अगर कोई भी जीआई ब्लीड लिगामेंट ऑफ ट्राइड से ऊपर हो तो वो अपर जीआई ब्लीड होती है, और कोई भी
GI ब्लीड अगर लिगामेंट ऑफ ट्राइट से नीचे हो तो वो लोअर GI ब्लीड होती है. दिस इज़ बेसिकली अ क्लासिकल लैंडमार्क टू डिफाइन के अपर GI ब्लीड है या लोअर GI ब्लीड है. अब अगर आपने आर्टेरियल सप्लाई ऑफ डुओडेनम देखनी है तो पहले आप दो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरीज हैं वो याद कर लें. पैनक्रिएटिक और डुओडेनल आर्टरीज, इसकी जो सुपीरियर ब्रांच है वो फोरगट वाले पार्ट को सप्लाई करती है, और जो उसकी इन्फीरियर ब्रांच है पैनक्रिएटोडोडनल आर्टरी की वो मिडगट वाले पार्ट को सप्लाई करती है. ठीक हो गया. अब अपर वाले पार्ट को कुछ एडिशनल ब्लड सप्लाई मिलती है. कहाँ कहाँ से मिलती है? एक तो आपको मिलती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी से. ठीक हो गया. अब आपके पास ना जो एक्स्ट्रा राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी देती है, तो यहाँ पे आपको राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी से ब्लड आते हुए नज़र आ रहा है. फिर आपको सुप्रा डुओडेनल आर्टरी नज़र आ रही है. सुप्रा डुओडेनल आर्टरी को आर्टरी ऑफ विल्की भी कहते हैं. फिर गैस्ट्रो डुओडेनल आर्टरी आ रही है, इसकी ब्रांचेस भी फर्स्ट पार्ट को सप्लाई करती हैं. ठीक हो गया. तो ये जो आपकी राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी है, फिर गैस्ट्रो डुओडेनल आर्टरी है, सुप्रा डुओडेनल आर्टरी की सारी अपर पार्ट की सप्लाई को हेल्प करती हैं, ऐड करती हैं. लेकिन ये मेन सप्लाई है कि पैनक्रिएटिक और डुओडेनल आर्टरी जो है ना सुपीरियर इन्फीरियर ब्रांचेस देती है. फोरगट वाले पार्ट को सुपीरियर सप्लाई करती है, मिडगट वाले को इन्फीरियर सप्लाई करती है. ये तो याद रखना बहुत ज़रूरी है. तो बेसिकली वो जो फर्स्ट थी उसकी एडिशनल ब्लड सप्लाई जो मैंने बताई थी वो मैं अगर इस पिक्चर से दिखाऊं तो उसमें ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है. वो जो नज़र नहीं आ रही थी कि ये डुओडेनम का पार्ट है ना, तो डुओडेनम के फर्स्ट पार्ट पे देखो ये सुपीरियर पैनक्रिएटिक डुओडेनल आर्टरी तो आ ही रही है. राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी आ रही है, यहाँ से राइट गैस्ट्रिक आर्टरी आ रही है ऊपर से. ठीक है. और ये गैस्ट्रो डुओडेनल आर्टरी आ रही है. ठीक हो गया. तो यहाँ पे भी वो आर्टरी ज़रा अच्छे से नज़र आ रही हैं. फिर हम चलते हैं आगे वीनस ड्रेनेज पे. वीनस ड्रेनेज जो है वो आर्टीरियल ड्रेनेज को फॉलो करता है. बेसिकली वेन्स ड्रेन इनटू द स्प्लीनिक वेन. ये स्प्लीनिक वेन आ रही है और सुपीरियर मीसेंटेरिक वेन. ठीक है. ये सुपीरियर मीसेंटेरिक वेन आ रही है. सुपीरियर मीसेंटेरिक वेन और स्प्लीनिक वेन दोनों जाके पोर्टल वेन में कंक्लूड कर जाती हैं. ठीक है. उसमें ड्रेन कर जाती हैं. फिर हमारे पास लैक्टियल्स और लिम्फ ड्रेनेज है. ये इंपॉर्टेंट है. ईच विलस जो होता है ना हमारे पास इंटेस्टाइन में से जो विलस होता है, ईच विलस कंटेन्स अ सेंट्रल लैक्टियल. ठीक है. उस सेंट्रल लैक्टियल में लिम्फ ड्रेन करता है थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल प्लेक्सिस. ठीक है. और फिर ये जाता है रीजनल लिम्फ नोड्स पे. तो लैक्टियल्स क्या करते हैं? ये लैक्टियल्स आपकी फ़ैट एब्जॉर्प्शन का रूट होता है. कोई भी प्रॉब्लम हो यहाँ पे तो आपका फ़ैट मैल एब्जॉर्प्शन होती है और उसको हम स्टीयटोरिया कहते हैं. कोई भी लिम्फेटिक डिजीज़ हो, इन्फेक्शन हो, इंटेस्टाइनल TB कैन कॉज अल्सर्स और स्ट्रिक्चर्स, तो आप ज़रूर देखते हो कि लिम्फ नोड्यूल्स बने हुए हैं कि नहीं बने हुए. ठीक है. फिर हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ डुओडेनम जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है. सबसे पहले आप देखें कि वो पैनक्रिएटिक और डुओडेनल लिम्फ नोड्स पे जाती है. ठीक है. पैनक्रिएटिक और डुओडेनल लिम्फ नोड्स के बाद ये हेपेटिक नोड्स में जाती है और ये सिलियाक नोड पे जाती है. तो यहाँ पे आपको सिलियाक नोड्स नज़र आ रहे हैं. ठीक है. सिलियाक नोड्स नज़र आ रहे हैं उसके, लेकिन यहाँ पे पैनक्रिएटिक और डुओडेनल नहीं नज़र आ रहे. सिलियाक नोड्स नज़र आ रहे हैं सिर्फ. तो हेपेटिक नोड्स जो हैं वो सिलियाक नोड्स में चले जाते हैं जो कि पाइलोरिक नोड्स में जाती है. पाइलोरिक नोड्स भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे. ठीक है. इंटेस्टाइनल लिम्फ ट्रंक ऑल द वे जाती है एंड में सिस्टर्ना के काइलाई में. ठीक है. यहाँ पे ज़्यादातर नोड नज़र नहीं आ रहे वैसे. अब हम इनर्वेशन ऑफ डुओडेनम थोड़ा सा देख लेते हैं. ठीक है. इनर्वेशन ऑफ डुओडेनम की जब बात करते हैं तो सिंपैथेटिक सप्लाई आती है T9 टू T10 से. T9 टू T10 सेगमेंट से आती है सिंपैथेटिक सप्लाई आपकी. ठीक है. बेसिकली आपकी जो ग्रेटर पैरास्प्लैंक्निक नर्व और लेसर स्प्लैंक्निक नर्व्स हैं. और फिर आपके पास आ जाता है सिलियाक पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व जो कि सिलियाक प्लेक्सस के थ्रू आती है. ठीक है. इट रीचेस डुओडेनम अलॉन्ग दी आर्टरीज. दैट्स इनफ फॉर यू गाइज. मैं इनर्वेशन का एक और लेक्चर बना के डालूंगी व्हेन द एंटायर GIT पार्ट इज़ डन, बिकॉज इट्स ऑल लाइक मिक्सड अप है एक दूसरे के साथ. जेजिनम और एलियम का भी अलग अलग डालूंगी बिकॉज इसी में काफ़ी मिनट्स स्पेयर हो गए हैं.